العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، نور الایضاح کتاب الحج کا یہ 7واں سبق ہے. اس میں ہم حج کے طریقے کو مزید پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ سبق میں بھی حج کے طریقے کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی. احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے، احرام باندھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پھر مکہ آ کر کیا کرنا ہے، ساری تفصیلات گزر چکی ہے. تو جب یہ سارے اعمال کر لے، طواف قدوم سے فارغ ہو جائے تو مکہ میں ہی ٹھہرا رہے. مثلا کوئی شخص 1 ذی الحج کو مکہ پہنچ گیا، طواف قدوم سے فارغ ہوا تو اب مکہ میں ہی ٹھہرا رہے، زیادہ سے زیادہ طواف اور عبادات کی کثرت کرے. جب 8 ذی الحج ہو جائے تو اب حج کا آغاز ہوتا ہے، اور 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ 5 دن اعمال حج کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور تمام اعمال حج انہی 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں. یوم الترویہ 8 ذی الحج کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے اعمال حج کا آغاز ہوتا ہے. تو 8 ذی الحج کو جب سورج طلوع ہو جائے تو طلوع کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائے. مینا مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے، وہاں پر حجاج کرام کو 8 ذی الحج سورج طلوع ہونے کے بعد جانا ہے، اور آنے والی رات مینا میں ہی گزارنا ہے. اس کو مبیت بھی مینا کہا جاتا ہے، مینا میں رات گزارنا. تو وہی لکھ رہے ہیں ثم يبقى بعد ما فعل ذلك الى يوم الترویۃ وهو يوم الثامن من ذی الحجہ. پھر یہ سارے اعمال کرنے کے بعد یوم الترویہ تک ٹھہرا رہے، اور یوم الترویہ ذی الحج کا 8واں دن ہے. یا کے نیچے کسرہ ہے، بہت ساری اعرابی غلطیاں ہیں، ان کو دیکھ کر عبارت درست پڑھی جائے. فَإِذَا جَاءَ هَذَا الْيَوْمُ ذَهَبَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنَى فَيَبِيتُ بِهَا. پھر جب یہ دن آ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد مینا چلا جائے، مینا میں رات گزارے. یبیت رات گزارنا، اسی سے مبیت رات گزارنے کے معنی میں. یہ تصویر جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ میدان مینا میں لگے ہوئے حجاج کرام کے خیمے ہیں. پہلے زمانے میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی تھی، لیکن آج اللہ رب العزت کی طرف سے بہت کچھ سہولیات ہے، ہر جگہ پورا بندوبست ہے. اس مقام پر بھی تا حد نظر خیمے لگے ہوئے ہیں. یہاں آ کر ان خیموں میں جہاں جگہ ملے رات عبادات میں، نوافل میں، دعاؤں میں گزارنا ہے. تو یہ ذی الحج کے 8ویں دن کی عبادت ہے، مکہ سے مینا آنا، مینا میں رات گزارنا. یہاں رات گزارنے کے بعد جب 9ویں ذی الحج کی صبح ہو تو عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. عرفات میں جا کر قیام کرنا ہے، پھر وہیں وقوف کرنا ہے، اور دن بھر عرفات کے میدان میں رہنا ہے. اور آج کا دن حج کے سب سے عظیم اور اہم رکن کی ادائیگی کا دن ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلد جایا جائے، اور جبل رحمت جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا اس کے قریب وقوف کرے، ٹھہرے، اور امام جو کچھ خطبہ دے اس خطبے کو سنے، مناسک حج کی تعلیم دے تو اس کو سنے، اس کے مطابق عمل کرے. اب عرفات کے میدان میں بہت بڑی مسجد بھی تعبیر کر دی گئی ہے جسے مسجد خیف کہا جاتا ہے. تو امام کا خطبہ اسی مسجد سے ہوتا ہے.
लेकिन पूरे साउंड सिस्टम और माइक के ज़रिए वो आवाज़ दूर व करीब तक पहुंचाई जाती है। तो जितने भी आमाल हैं, दो नमाज़ों को ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक्त में इमाम की इक्तिदा में अदा करना है कसर के साथ, और फिर इबादत में मशगूल रहना है, यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो अब आरफात से रवानगी है। वहाँ मगरिब की नमाज अदा नहीं करना है, बल्कि इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा एक साथ अदा करना है। तो ये 9वीं ज़िल-हज का तज़किरा किया और उसके अहम आमाल को बतलाया। फ़इज़ा कान यौम अत्तासिई मिन ज़िल-हिज्जति ज़हब इला अरफ़ा, जब ज़िल-हज का 9वां दिन हो जाए तो अरफ़ा जाए। फ़यक़िफ़ु क़रीबन मिन जबल रहमह लियस्मअ खुतबतल इमाम व यतअल्लमल मनासिक मिन, और जबल रहमत के करीब वक़ूफ़ करे ताकि इमाम का खुतबा सुन सके और उससे मनासिक हज के आमाल सीख सके। मनासिक बतौर ख़ास हज के आमाल को कहा जाता है। और अगर वहाँ करीब न जा सके तो पूरा का पूरा अरफात वक़ूफ़ की जगह है, जहाँ आसानी से जगह मिल जाए वहीं पर वक़ूफ़ कर ले, ठहर जाए। फ़इज़ा ग़रबतिश-शम्सु ज़हब इला मुज़दलिफ़त फ़बात फ़ीहा, जब सूरज गुरूब हो जाए तो मुज़दलिफ़ा चला जाए और वहाँ रात गुजारे। तो दिन भर अरफात में गुजारने के बाद रात सूरज गुरूब होने के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी है और वहाँ जाकर रात गुजारना है। देखिए, एक तस्वीर है जो जबल रहमत को नुमाया कर रही है। उस पहाड़ी के ऊपर जो छोटे से सुतून नुमा एक चीज़ दिख रही है, वही मकाम है जहाँ जबल रहमत है और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ फरमाया था। तो उस पहाड़ी के ऊपर या उसके इर्द गिर्द जहाँ कहीं जगह मिले, आसानी के साथ वहाँ इबादत में मशगूल रहे, इबादत में लगा रहे। मैदान अरफात की एक फ़िज़ाई तस्वीर है जिसमें पूरे मैदान को नुमाया किया गया है। तो ये मैदान बज़ाहिर दिखने में एक मामूली है, छोटा सा है, लेकिन बहुत वसी इलाके पर मुश्तमिल है। 40-50 लाख फ़र्ज़ंदान तौहीद इस मैदान में इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का ख़ास मौका होता है। तो इस मौके पर मैदान अरफात में वक़ूफ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं की जाए। तो जब अरफात में सूरज गुरूब हो जाए, वहाँ से रवाना होकर मुज़दलिफ़ा चला आए। ये मुज़दलिफ़ा में लगे हुए खैमों का एक मंज़र है। तो बहुत सहूलियात के साथ यहाँ पर खैमे लगाए गए हैं, नस्ब किए गए हैं। तो जहाँ पर जगह मैसर आए वहाँ पर रह कर रात गुजारे और इबादत में मुनहमिक रहे। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद जब यौमुन नहर की सुबह हो, 10वीं ज़िल-हज, जब हम ईद उल अज़हा पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो उस दिन की जब सुबह हो तो फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में तारीकी में इब्तिदाई वक्त में पढ़े। इब्तिदाई वक्त में नमाज अदा करने के बाद वहीं पर वक़ूफ़ करे, ठहरे और दुआ करे। फिर सूरज तुलू होने से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाए और मिना पहुँचकर जमराए आक़बा की रमी करे। 3 जमरात हैं, जमराए आक़बा, जमराए वुस्ता और जमराए ऊला। बितरतीब 3 जमरात है। वहाँ पर पूरी तफसील लिखी होती है कि कौन सा जमराए आक़बा है, कौन सा वुस्ता है और कौन सा ऊला है। तो 10 तारीख को मीना में पहुँचने के बाद सबसे पहले जमराए आक़बा की रमी करनी है और आज के दिन सिर्फ़ एक ही जमरा की रमी करनी है। रमी करने का तरीका बतला दिया गया कि 7 कंकरियाँ हाथ में ले, एक एक कंकरी मारता रहे और तकबीर कहता रहे। फिर जब कंकरियाँ मारने से फारिग हो जाए तो अगर चाहे तो
कुर्बानी करे, बकरी ज़बह करे। कभी तो बकरी ज़बह करना जायज़ होता है, पसंदीदा और मुस्तहब होता है, और कभी वाजिब होता है। उसकी पूरी तफसील आगे आएगी जब हज की 3 किस्में बयान की जाएंगी, हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु। तो हज इफ़राद में बकरी ज़बह करने का इख्तियार है, चाहे तो ज़बह करे और चाहे तो न करे, जिसमें फ़कत हज करने की नीयत की हो, साथ में उम्रा न किया हो। और अगर दूसरे 2 हज हैं तो वहाँ पर बकरी ज़बह करना वाजिब होगी। ये दूसरा अमल किया। अब उसके बाद सर के बाल मुंडवा दे या छोटे करवा दे, हल्क करे या कसर करे, हल्क करना बेहतर है। ये तीसरा अमल जब हो गया तो अब उसके बाद जितनी भी एहराम की पाबंदियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई, वो हलाल हो गया। सिर्फ़ एक पाबंदी बाकी रह गई, वो बीवी के साथ मुजामात और हम बिस्तरी करना है। औरतें हलाल नहीं हुई, तो अगर औरत साथ में हो, बीवी साथ में हो, तो अब भी ये पाबंदी बाकी है कि उससे क़ज़ाए हाजत न करे। तो ये 10वें दिन के कुछ आमाल बयान किए गए। फ़इज़ा कान यौमुन नहरी व हुवा यौमुल आशिर मिन दिल हिज्जति युसल्लिल फ़ज्र बिग़लस। जब यौमुन नहर आ जाए और वो ज़िल हज का 10वां दिन है तो फजर की नमाज तारीकी में पढ़े। सुम्मा यक़िफ़ु बिल मुज़दलिफ़ा वलौ लहज़तन, फिर मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करे, खड़ा होकर इबादत करे, दुआएं करे, गरचे थोड़ी देर के लिए हो। सुम्मा यज़हबु इला मिनन क़ब्ल तुलूइ शम्सी फ़यरमी जमरतल आक़बा बिसब्इ हसयातिन युकब्बिरु मा कुल्ली हसा। फिर सूरज तुलू होने से पहले मीना चला जाए और 7 कंकरियों के ज़रिए जमराए आक़बा की रमी करे, जमराए आक़बा पर कंकरी मारे, हर कंकरी के साथ तकबीर पढ़ता रहे। आक़बा लिखने में गलती हुई है, दूसरे वाला आइन गलत है। फ़यरमी जमरतल आक़बा बिसब्इ हसयात युकब्बिरु मा कुल्ली हसात, हर कंकरी के साथ तकबीर पढ़ता रहे। सुम्मा यज़बहु इन शातन इन अहब्बा, फिर अगर चाहे, अगर पसंद हो तो बकरी ज़बह करे। तो इन अहब्बा की कैद हज इफ़राद करने वाले के साथ है, जिसने सिर्फ हज करने का इरादा किया था, साथ में उम्रा नहीं किया। सुम्मा यहलिकु शअरहु औ युक़स्सिरहु, फिर अपने बाल मोड़ डाले या कसर करे। वल हल्क अफ़दल, हल्क करना अफजल है, पहले भी बतलाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क किया था। तो अगर सर में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, तो हल्क ही करना चाहिए। फ़इज़ा फ़अल ज़ालिका कुल्लहु फ़क़द हल्ल लहु कुल्लु शैइन मिन महज़ूरातिल इहराम इल्ला निसा। जब उसने ये सारे आमाल कर लिए तो एहराम की ममनुआ चीज़ों में से हर चीज़ उसके लिए हलाल हो गई सिवाय औरतों के। तो अब सिले हुए कपड़े पहनना, नाखून या बाल काटना, इत्र लगाना, ये सारी चीज़ें हलाल हो गई, मगर औरत अभी भी हराम बाकी है। इस नक्शे में आप जमरात को मुलाहजा कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो सुतून हैं, इन्हीं सुतूनों को जमरा कहा जाता है। और ये 3 है, एक जमराए अक़बा है, एक जमराए वुस्ता है जो दरमियान में है, और एक जमराए ऊला है। ये भी जमरे की एक तस्वीर है। देखें इर्द गिर्द किस तरह लोगों का हुजूम है। और अब सहूलत के पेश नज़र यहाँ पर भी इमारत बना दी गई है। 3 छत हैं, हर छत में जगह बनाई गई है जिससे रमी की जा सकती है, कंकर मारे जा सकते हैं। तो बसहूलत बआसानी दूसरों को तकलीफ़ दिए बगैर ये वाजिब अदा किया जाए। और आज के दिन सिर्फ एक जमरे को ही रमी करना है, बकिया अय्याम में तीनों जमरात की रमी करना है।
تو یوم النحر میں جب یہ سارے اعمال ادا کر لیے تو اب اگر ممکن ہو اور بہتر یہی ہے کہ 10ویں ذی الحج کو یوم النحر کے دن مکہ آ جائے اور مکہ میں طواف زیارت کرے، جو حج کا دوسرا عظیم رکن ہے۔ اور اگر اس دن نہ آ سکے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو اگلے دن آ سکتا ہے 11 تاریخ کو، اور اگر اس دن بھی نہ آ سکے تو 12 کو آنے کی بھی اجازت ہے، اس سے زیادہ مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ جب مکہ میں آ جائے گا تو اب طواف زیارت کرے گا، اور یہ حج کا رکن ہے، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ ہے۔ جب یہ طواف بھی کر لیا تو اب اس کے لیے سارے ممنوعات ختم ہو گئے، عورت بھی اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ثم يعود الى مکہ فی نفس یوم النحر ان استطاع، پھر اگر استطاعت ہو، ممکن ہو تو اسی دن مکہ لوٹ آئے، فی نفس یوم النحر، یوم النحر کے دن ہی مکہ لوٹ آئے۔ فإن لم يستطع ففي اليوم الذي يليه، اگر ممکن نہ ہو تو اس دن میں آئے جو اس سے متصل ہے، یعنی 11 کو۔ فإن لم يستطع ففي يوم الثاني عشر، اگر ممکن نہ ہو، استطاعت نہ ہو تو 12ویں دن میں 12 تاریخ کو مکہ آ جائے۔ ولا يؤخر عن ذلك، اس سے زیادہ مؤخر نہ کرے، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ فإذا صار بمکہ طاف بالبیت 7 اشواط، جب مکہ میں آ جائے تو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر لگائے۔ وهذا هو طواف الافاضہ، اور یہی طواف افاضہ ہے۔ وهو رکن، اور یہ رکن ہے۔ ويسمى طواف الزیارت ایضا، اور اسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیچھے بتلایا گیا تھا کہ طواف کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے جو رکن طواف ہے، فرض ہے، وہ یہی ہے۔ وَمَتَى طَافَ هَذَا الطَّوَافَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النِّسَاء، جب یہ طواف بھی کر لے تو اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی، یہاں تک کہ عورت بھی حلال ہو گئی۔ تو اب جو چاہے وہ کرے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ حج کے بہت سارے اعمال بیان کیے ہیں۔ اب بقیہ جو دن ہیں ان میں کیا کرنا ہے تو اس کو آگے بیان کریں گے۔ آج کے دن جب مکہ میں طواف زیارت سے فارغ ہو جائے تو واپس مینا چلا جائے اور مینا جا کر رات گزارے۔ فَإِذَا كَانَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، اگر یوم النحر میں مکہ چلا گیا تھا، یوم النحر میں مکہ چلا گیا تھا یا 10ویں ذی الحج کو مکہ آ گیا تھا، وطاف طواف الزیارہ، اور طواف زیارت بھی کر لیا تھا، رجع الى مینا فی یوم النحر فبات بہا، تو یوم النحر میں ہی مینا لوٹ آئے اور وہیں رات گزارے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی دن یہ سارے اعمال کرے۔ پہلے صبح میں مینا میں آیا، جمرات کی رمی کی، قربانی کی، جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، رمی کی، اس کے بعد واپس مکہ آیا، یہاں پر آ کر طواف زیارت کیا، طواف زیارت سے فارغ ہو کر پھر مینا لوٹ جائے۔ اب 11 اور 12 تاریخ کو کیا کرنا ہے اور پھر طواف صدر، یہ چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ رَمَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ، جب 11واں دن ہو، 11 تاریخ ہو تو زوال کے بعد 3 جمرات کی رمی کرے۔ پہلے دن زوال کے بعد کی قید نہیں تھی، بلکہ صبح مزدلفہ سے آتے ہی رمی کر سکتا تھا، لیکن 11ویں اور 12ویں دن کے لیے زوال کے بعد کی قید لگائی ہے، تو زوال سے پہلے رمی نہیں کرے گا بلکہ زوال کے بعد۔ تو جب 11 تاریخ ہو جائے تو زوال کے بعد 3 جمرات کی رمی کرے۔ پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی، لیکن اب 3 جمرات کی رمی کرے۔ یرمی کل جمرۃ ب7 حصیات، ہر جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔
वयब्दउ बिलजमरतिल लती तलिल मस्जिदा सुम्मा बिल्लती तलीहा सुम्मा बिजमरतिल आक़बा, और उस जमरे से आगाज़ करे जो मस्जिद से मुत्तसिल है। मिना में मस्जिद है तो उस मस्जिद से मुत्तसिल जो जमरा है, जिसको जमरा ऊला भी कहते हैं, वहाँ से आगाज़ करे तो उसको मस्जिद खैफ कहा जाता है। मिना में जो मस्जिद है वो मस्जिद नमीरा है, पहले शायद गलती से वहाँ पर मस्जिद खैफ कहा गया। तो मस्जिद खैफ मिना में है, मस्जिद नमीरा अरफात में है। तो मस्जिद खैफ से मुत्तसिल जो जमरा है उसको जमरा ऊला कहते हैं। तो वहाँ से आगाज़ करे। सुम्मा बिल्लती तलीहा, फिर जो उससे मुत्तसिल है, उसके साथ लगा हुआ है, जिसको जमरा वुस्ता भी कहते हैं, उसकी रमी करे। सुम्मा भी जमरतिल आक़बा, फिर जमरा आक़बा की रमी करे जो दूर है मस्जिद से उसकी। तो इस तरह बितरतीब तीनों जमरात की रमी करे, फिर रात वहीं गुजारे। ये 11 तारीख के अमाल हुए। फ़ैदा कान यौमुस्सानी आशर फ़अला मिस्ल मा फ़अला फ़िल यौमिल हादी आशर व बिज़ालिका यंतही हज्जुहु। फिर जब 12 तारीख हो जाए तो वैसा ही करे जैसा 11 तारीख में किया। उसी तरीके से ज़वाल के बाद पहले जमराए उला की रमी करे, फिर वुस्ता की, फिर आक़बा की। और रमी करने के बाद जब जमरा की रमी से फारिग हो तो उसके बाद हाथ उठाकर दुआ भी करना है। पहले जमरे की रमी करे, हाथ उठाकर दुआ करे, फिर दूसरे जमरे की रमी करे और हाथ उठाकर दुआ करे, फिर तीसरे जमरे की रमी करे और फिर अपनी क़ियामगाह वापस आ जाए। तो इसी तरह 12 तारीख को भी करे, ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करे। तो ये हज का 5वां दिन था। वबिज़ालिका यंतही हज्जुहु, इस अमल के साथ साथ उसका हज मुकम्मल हो गया। अब आगे क्या करना है? सुम्मा यऊदु इला मक्का फ़यतूफ़ु बिल बैति तवाफ़ सदर सबअत अशवात, फिर मक्का लौट आए और तवाफ़ सदर करे, 7 चक्कर लगाए। व युसम्मा हादा तवाफ़ अयदन तवाफ़ुल वदा, और इस तवाफ़ को तवाफ़ वदा भी कहा जाता है। व तवाफ़ आखिर अहद, और आखिरी वक्त का तवाफ़ भी कहा जाता है। वह वो तवाफ़ुल मअदूद फ़ी वाजिबातिल हज, और ये वो तवाफ़ है जो वाजिबात हज में शुमार होता है। तो इस तवाफ़ करने का जो वक्त है वो मक्का से रुखसत होने से पहले का है। अब अगर कोई आदमी फ़ौरन 13 ज़िलहज को मक्का से रुखसत हो रहा है तो उसी दिन तवाफ़ करे, और अगर किसी को 4-5 दिन बाकी रहना है, 20-22 तारीख को जाना है, तो जब जाए उस वक्त ये तवाफ़ करे। तो इस तरीके से हज के ये तमाम आमाल पूरे हो जाएंगे। अब एक नज़र में हज के तमाम आमाल पर नज़र डाल लें। सबसे पहले एहराम बांधना था, फिर मक्का आकर तवाफ़ कुदूम करना था और सफ़ा मरवा की सई, फिर उसके बाद मीना जाना था 8 तारीख को। 9 तारीख को अरफात में जाना था और रात लौट कर मुज़दलिफ़ा में आना था। फिर 10वीं तारीख को मुज़दलिफ़ा से मीना आना है। मीना आकर सारे आमाल उसी तरतीब से अदा करना है जिस तरतीब से बतलाया गया। फिर वहाँ से मक्का आकर तवाफ़ ज़ियारत करना था, और फिर 11 और 12 को मीना में वापस क़ियाम करना और जमरात की रमी करना, और फिर आखिर में जब मक्का से रुखसत हो तो तवाफ़ वदा करना था। तो ये आमाल इख्तिसार के साथ एक नक्शे की सूरत में आपके सामने रखे गए। अब यहाँ इस नक्शे के ज़रिए मज़ीद कुछ चीज़ों को बतलाया जा रहा है। फरमाते कि मक्का और मीना के दरमियान 7 किलोमीटर है, और अब सुरंग बना दी गई है। अगर सुरंग के रास्ते से जाओगे तो 4 किलोमीटर। मक्का और मुज़दलिफ़ा के दरमियान 10 किलोमीटर का फासला है। मक्का और मुज़दलिफ़ा को जो दूसरा रास्ता है 15 किलोमीटर का फासला है। फिर मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान 6 किलोमीटर का फासला है। तो गोया के 16 या 21 किलोमीटर है मक्का से अरफात। यहाँ पर निशान बतलाया गया जबल रहमत, और वहीं पर मस्जिद नमीरा है। और मक्का और अरफात के दरमियान एक दूसरे रास्ते 21 किलोमीटर का फासला है।
جمرہ صغرا سے جمرہ وسطیٰ کے درمیان 150 میٹر کا فاصلہ ہے، کلومیٹر نہیں، میٹر. اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے درمیان 275 میٹر کا فاصلہ ہے. تو عرفات کے میدان، پھر گزرنے کا راستہ مزدلفہ، اور یہاں بتلایا گیا کہ مسجد خیف ہے، اور مسجد خیف سے ملا ہوا جو جمرہ ہے اس کو جمرہ صغرا یا اولا کہا جاتا ہے، دوسرا جمرہ وسطیٰ ہے، اور تیسرا جمرہ عقبہ ہے. تو اس نقشے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بتلا دی گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سا مقام کتنے کلومیٹر پر واقع ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.